السلام علیکم۔ آج ہم نورانی قاعدہ پڑھنے والے ہیں۔ بیسیکلی نورانی قاعدہ قرآن جب پڑھنے کے لیے ہم سیکھتے ہیں، جیسے انگلش کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ABCD پڑھتے ہیں نا الفابیٹس، پھر ہم انگلش لینگویج سیکھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے عربک لینگویج سیکھنے کے لیے جو پہلی کتاب ہوتی ہے وہ ہے نورانی قاعدہ۔ اس میں الف، با، تا وغیرہ جو بھی الفابیٹس ہیں وہ ہم سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم ریگولرلی آپ اس چینل سے جڑ جاتے ہیں اور آپ ریگولرلی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 1، جسے ہم مفردات کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ ایک دعا ہے جو انسان کو کوئی بھی کام یا پھر ایک اچھا کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ تو چلیے سب سے پہلے جو عربک الفابیٹس میں جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے الف۔ ٹھیک ہے، یہ اسے کہتے ہیں الف، یہ آپ کا الف ہے۔ اس کے بعد پھر آ جاتا ہے با، تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہے نا با الف زبر با، تو اسی طریقے سے تھوڑا کھینچ کے پڑھنا ہے با۔ اس کے بعد پھر آپ کا آ جاتا ہے تا، پھر آ جاتا ہے فا۔ فا بیسیکلی آپ کو کیسے پڑھنا ہے، دونوں دانت جو آپ کے ہیں اوپر کے اور نیچے کے آگے والے دانت، اس میں آپ کو زبان کو ہلکا سا زبان کو بیچ میں رکھنا ہے اور بولنا ہے فا۔ اسی طریقے سے جو اگلا ہے وہ ہے جیم، اسے کہتے ہیں جیم۔ ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ہا۔ یہ اس چیز پر آپ فوکس کریں، جیم کھینچنا ہے۔ دیکھیے جیم کے بعد یا ہے پھر میم ہے تو یہ ہو گیا جیم۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ہے ہا الف زبر ہا، خا الف زبر خا۔ یہ ایک نارملی ہم لوگ جو بات کرتے ہیں جیسے خرگوش، عام بھاشا میں ہم لوگ ہندی انگلش وغیرہ میں اتنا مخرج نہیں چلتا ہے، تو حروف کی ادائیگی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو خا بیسیکلی آپ نارملی جو کھا یوز ہوتا ہے وہ کھا یہاں سے بولتے ہیں ہم لوگ، نارملی منہ سے بولتے ہیں خا۔ یہ آپ کا جو ہے حلق سے نکلتا ہے خا خا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مخرج ہے کون سے حروف کہاں سے نکلتے ہیں یہ بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کے اگلا جو حروف ہے وہ ہے یہاں پہ دال۔ دیکھیں دال، یہ ہے نا دال الف زبر دا لام ساکن دال۔ ٹھیک ہے، یہ ہے دال، یہ ہے را۔ تھوڑا ہلکا سا جھٹکا آنا چاہیے۔ جھٹکا کیوں آنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں پہ حمزہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو حمزہ میں تھوڑا سا جھٹکا آتا ہے، تو جھٹکا آنا چاہیے۔ را زا، اس کے بعد ہے سین، پھر ہے شین۔ یہ دونوں میں ڈفرینس ہونا چاہیے، یہ دونوں میں ڈفرینس آپ سمجھ لیں۔ اسے آپ چھوٹی سین کے بھی نام سے جانتے ہوں گے، اسے بڑی شین کے نام سے جانتے ہوں گے۔ تو یہ ہے سین اور یہ ہے شین، مطلب سیٹی کی طرح آواز نکالنا، شین یہ بڑی شین ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ یہ ہے صاد، منہ کو گول کرنا ہے، صاد۔ یہ ہے واد، واد۔ ٹھیک ہے، منہ کو گول کرنا ہے۔ پھر آپ کا آ جاتا ہے تا۔ یہ دیکھیے ایک آپ نے پڑھا ہوگا اوپر تا، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے ایک یہ ہے، آپ یہاں پہ آ جائیے، یہ ہے تا۔ تا منہ کو نارمل رکھنا ہے، نارملی تا تا ہوتا ہے نا، ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پہ ہے تا، لیکن یہ نارملی نہیں بولنا ہے، اس میں منہ گول ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ تا، اس طریقے سے یہ گول ہوگا۔ تو دونوں میں ڈیفرنس یہی ہے، وہ تا جو ہے وہ نارمل ہے، یہ تا جو ہے اس میں تھوڑا آپ کو منہ گول کر کے پڑھنا ہے۔ یہ ہے وا۔ اس کے بعد ہے عین، حلق سے عین۔ اس کے بعد ہے غین، یہ بھی حلق سے غین۔ جہاں پہ آپ کا زبان کا لاسٹ ایریا ہوتا ہے نا وہاں سے غین۔ ٹھیک ہے،
फिर आप आ जाते हैं अगले में, उसके बाद ये आ जाता है फा। इंग्लिश में एफ होता है ना, एफ से जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, फॉक्स हो गया, उसी तरीके से वो उर्दू में जो होते हैं, अरबी में जो होते हैं, वो फ़ा इस तरीके से होता है। फिर आता है काफ और काफ, दोनों में ये अगर नॉर्मली इंग्लिश में बात करें तो उसमें के का यूज़ होता है, ठीक है, काइट, उसके बाद है फिर आपका आ जाता है बहुत सारे वर्ड हैं, किंगडम, बहुत सारे वर्ड्स हैं। उसी तरीके से ये जो काफ है, इसे बड़ी काफ के नाम से भी जाना जाता है, काफ, ये भी हलक से आवाज़ निकलेगा आपका, काफ काफ। और ये काफ है, ये छोटी काफ है, ये नॉर्मली काफ काफ, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है जो अगला हरूफ है वो है लाम, ये देखिए लाम लाम, ठीक है। फिर जो अगला हरूफ है वो है आपका, ये देखिए, ये अगला हरूफ जो है ये है मीम, ये फिर है नून, ये है वाव वाव, फिर है हा, फिर है हमजा, फिर है या, फिर है या, ठीक है। उसके बाद है अगला जो है नुक्तों की पहचान। नुक्तों की पहचान, ये बेसिकली 5 तरह के नुक्ते यूज़ होते हैं। अगर ये हरूफ के नीचे एक नुक्ता, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस हरूफ के नीचे एक नुक्ता है। तो किस हरूफ के नीचे एक नुक्ता है, बा के नीचे, है ना, बा के नीचे एक नुक्ता है। उसके बाद फिर है 2 नुक्ता। इतने हरूफ में से आपको नोटिस करना है कि कौन से हरूफ के ऊपर एक नुक्ता है, कौन से हरूफ के नीचे एक नुक्ता है, कौन से हरूफ के नीचे 2 नुक्ता है, 3 नुक्ता है, कौन से हरूफ के नीचे 2 नुक्ता है। ये नुक्ता से आप वर्ड्स की पहचान कर सकते हैं। जैसे हरूफ के ऊपर एक नुक्ता, ठीक है, ये आप ये देखें, हरूफ के ऊपर एक नुक्ता। आप देखें कि नून में हरूफ के ऊपर एक नुक्ता है, क्लियर। अब आप एक एक करके सभी हरूफ देख लें, 1 2 3 देख लें, किसी में एक, ये देखिए फा के ऊपर एक नुक्ता है ना। ठीक इसी तरीके से देखिए वा में एक नुक्ता है, फिर आप यहाँ पे देख लें गैन में, है ना, वाद में। इसी तरीके से आप नुक्तों की पहचान कर लें कि अगर स्वाद और ज़्वाद में कंफ्यूजन हो रहा है, मान के चलिए आप जान रहे हैं कि इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि ता और वा में आपको कंफ्यूजन है कि ता क्या है, वा क्या है। आपको यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ का मिल रहा है, दोनों में डिफरेंस इस नुक्ते का मिल रहा है। तो अगर आप ये समझ लेते हैं, ये याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि ता और दा में नुक्ता जिसके ऊपर है वो दा है, नुक्ता जिसके ऊपर नहीं है वो ता है। ठीक उसी तरीके से आयन में और गैन में दोनों की शक्लें सेम है, आप देख लें, आयन भी उसी तरीके से दिख रहा है, गैन भी उसी तरीके से दिख रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। आयन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, गैन के ऊपर एक नुक्ता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आयन है, कौन सा गैन है, कौन सा ता है, कौन सा वा है। ठीक है, तो ये नुक्तों की पहचान है। अगला फिर इम्तिहान है। ये इम्तिहान आपको एक सबक के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस इम्तिहान का जो ये देखिए, ये जो है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इतने एरिया का स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आप खुद से लिख के चेक करें या खुद से देखें कि ये क्या है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है। आपको अगर पढ़ना है तो आप कोई बच्चे हैं जो आप अभी पढ़ना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो बेसिकली सीख रहे हैं, मतलब आप पढ़ना छोड़ चुके हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, आप काम कर रहे हैं या इंग्लिश वगैरह पढ़े हुए हैं लेकिन अरबी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बेसिकली आप ही के लिए ये है कि आप यहाँ से सीख सकते हैं। सबसे पहले एक अगल बगल से नूरानी कायदा आप परचेज़ कर लें। नूरानी कायदा परचेज़ जैसे ही कर लेते हैं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि अगला जो सबक का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल्स पर इस्लामिक से रिलेटेड हदीस वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें शेयर किए जाते हैं। इंशाल्लाह अगर आप जुड़े रहेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे भी आप फालतू के वीडियोस में लगे हुए रहते हैं, तो वीडियोस अगर आप देखते हैं, इस तरीके के वीडियोस देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। पढ़ने की और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हाँ, हालांकि लोगों को अभी आपकी एज अगर मान के चलिए 30 साल है, 40 साल है, अगर आप अभी नूरानी कायदा पढ़ने का शौक़ है आपको, आप चाहते हैं कि कुरान पढ़ना सीखें, अच्छे से सीखें, तो आप अभी मदरसा या कोई इंस्टीट्यूट पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल उठाइए और पढ़िए और सीखिए कुरान पढ़ना, ठीक है। कोई उम्र नहीं है इसके लिए। कुरान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कुरान सही से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लोग बस जैसे ही टूटे फूटे पढ़ना सीख लेते हैं और फिर समझते हमारा काम हो गया। नहीं, मुसलमानों के ऊपर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं, ये रीज़न नहीं दे सकते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। पढ़ना नहीं आता वो अलग मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप सीख नहीं सकते हैं, आपको सिखाने वाला कोई नहीं है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह जो आगे के वीडियोस आएंगे उससे आप ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक आप खैरियत से रहें, अच्छे से रहें।